Good morning, everyone. My name is Anuj Kumar, and I'm the Assistant Professor in Computer Science and Engineering Department in Ajay Kumar Garg Engineering College. Today, we have to discuss in the data structure. The topic is binary tree traversal. Means if we have a tree and how we have to be draw the number of the nodes, how we can be traverse the number of the elements of a binary tree. This is the main important topic in the tree. So first one is what is tree. So we can say that tree is a collection of the elements which is called as the nodes. A tree is a hierarchical structure of the nodes. A tree, what is tree? Tree is a hierarchical structure of the nodes. The first node of the tree is known as the root nodes, and the remaining nodes is also known as the subtree. In the given figure, if we see that first node is the A, and A is the root node, this is known as the root node, and remaining all the nodes are known as the subtree of the nodes. The root element of the tree of the is said to be the child of root R, if I are indicating that is R, and remaining are the elements of the nodes. So when we have to be discuss the binary tree, first we know the some basic terms that are used in the tree. So what is the root? In a given structure, if I have here in a given structure, the first node is known as the root nodes in the given. So here A is the root nodes. And similarly, we can see that what is the parent? So we can say that the child of the A is B, C and D. So the parent of B, C and D is A. Clear? Next one is the child. Same similar ki we can do the parents. The parents of B, C, D is A, and similarly the child of the A is the B, C and sibling is the B, C and D. Next is the sibling. What is the sibling? The nodes which are at the same level. If I am saying that कि ये मेरे क्या है, सारे के सारे nodes एक level पे है और जिनका पेरेंट्स क्या है, सेम. A के चाइल्ड्स कौन से हैं? B, C and D. तो B, C and D आपस में हम क्या कह सकते हैं कि these are the sibling. ठीक है. Path means we have to be traverse. Suppose I am move from A to J. तो the path, the follow the path is known as the between from A to J is known as the path. कि मुझे A to J पे ट्रेवल्सिंग करना है और A से J तक जाने के लिए जो भी हम पाथ यहाँ पे जो भी रास्ता एक फॉलो करेंगे, वे फॉलो करेंगे, वो क्या कहलाएगा मेरा? दैट इज ए पाथ. कि फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम A, फर्स्टली वी हैव टू बी रीच C. तो फर्स्टली वी हैव टू बी रीच फ्रॉम नोड A टू नोड C, देन नोड C टू नोड G, देन नोड G टू नोड J. तो दिस इज नोन एज द पाथ. ठीक है. इससे इट इज द सक्सेसिव एज फ्रॉम द सोर्स नोड इज A and to the destination node is J here. ठीक. The path length of the C from C to J is T. Now here we are from where we have to be calculate from C to J. So path is one is the this is the length 1 and this is the 2. So path length is completely is 2 and the path is C to G and G to J. This is the path. This and A is C to J and G to J. ठीक. नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ ए नोड्स. इन नोड्स हैविंग द नंबर ऑफ चाइल्ड्स, दैट इज नोन एज द डिग्री. कि अगर हम यह बात करें ए नोड्स है मेरा, उसके चाइल्ड्स कितने हैं? 1, 2 एंड 3. कितने चाइल्ड उससे कनेक्टेड है? दीज आर नोन एज द डिग्री. तो डिग्री ऑफ नोड ए इज 3. डिग्री ऑफ नोड बी इज कितने चाइल्ड्स हैं? दैट आर द 2. तो डिग्री ऑफ इज 2. सी का 1, डी इज 2, जी इज 2 एंड एफ, ई, जे, K, I, H, they have no child. So degree is the 0. So in every given nodes, the how many childs are connected to that node is known as the degree of the nodes. Next is the leaf nodes. ठीक है. There are the two types of the nodes. Number one is the leaf node. कि in a given structure, the nodes which have the degree 0 is known as the leaf nodes. And the nodes which has degree something 1, 2, 3 and 4 and so on, these are known as the non-leaf node in the given tree. Clear? So when we have to be discuss the binary tree, so we have to be know the what is the root, what is the parent, sibling, path, degree of a node, leaf node and non-leaf node. Now we have to be discuss the binary tree. ठीक है. In the given tree, what we say that here a node have maximum number of childs, means उसके पास कितने भी childs हो सकते हैं, 1, 2, 3 and so on. ठीक है. But when we talk in the binary tree, so what does it? Binary tree is a tree which has maximum 2 children. Means हर एक nodes के पास maximum कितने children होंगे?
2 होंगे, 2 से ज्यादा चिल्ड्रंस नहीं होंगे, उसके पास 0 भी हो सकता है, मिनिमम 1 भी हो सकता है, लेकिन बट मैक्सिमम कितने होंगे, दीज आर द 2. तो इन द गिवन फिगर इफ आई एम टॉकिंग रूट नोड ए हैव द चाइल्ड, हाउ मेनी चाइल्ड, 2, that is true. 2 have the again 2 childs, 3 have the again 2 childs, 4 2 childs, okay, 5 2 childs, okay, 6 1 child. Consider this is the 1 child, then okay, 7 has 1 child, and the nodes 8 9 10 11 13 14 they have the no childs, mean they have the children 0 children. So that tree is also known as a binary tree. So we can say that a tree which has maximum 2 children, so that tree is known as the binary tree. Now main is the how we have to be traversing these number of nodes in a binary tree. ठीक है ना. So to traverse the elements we have the 3 types of the traversing. Number 1 pre-order traversing, second in-order traversing, and third one is the post-order traversing. What is the, वो हमें क्या करेगा, गिवन फिगर्स दे देगा एंड फाइंड क्या करेगा कि फाइंड आउट द प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्री ट्रेवर्सल ऑफ द गिवन ट्री. या फिर क्या चीज देगा कि नेक्स्ट प्रॉब्लम हम वहां पे क्या करेंगे कि कोई भी एक ट्री के लिए वो हमें यहाँ पे क्या दे देगा कि किसी भी एक ट्री का प्री ऑर्डर इन ऑर्डर दे देगा और रिवर्स में क्या बोल देगा कि ड्रॉ ए ट्री. मीन्स हमें यहाँ पे अब 2 प्रॉब्लम्स हमको वी हैव टू बी फाइंड आउट. फर्स्ट वन वी हैव गिवन ए ट्री एंड वी हैव टू बी फाइंड आउट द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर एंड द post order. And second one after that pre-order and in order of, or suppose post order, anything is given and we have to be draw the tree. So when we have to be discussed about the pre-order traversing, तो pre-order traversing क्या कहता है, firstly it will print the root. Clear? तो suppose in the given figure, तो firstly what it will be print the root, then लेफ्ट पार्ट मींस जो भी अब उसके ट्री के अंदर लेफ्ट पार्ट होगा वो सबसे पहले सारे नोड्स को प्रिंट करेगा. देन किसको मूव करेगा, राइट पार्ट को. देन वो किसको मूव करेगा, राइट पार्ट. ठीक है. इन ऑर्डर व्हाट डज इट से, फर्स्टली इट विल बी प्रिंट द लेफ्ट पार्ट. मींस इन ऑर्डर में वो क्या कहता है, सबसे पहले किसको करेगा, लेफ्ट पार्ट को. फिर किसको प्रिंट करेगा, दैट इज द रूट पार्ट को. फिर किसको प्रिंट करेगा, दैट इज द राइट पार्ट. पोस्ट ऑर्डर में क्या कहता है, फर्स्ट वन इज लेफ्ट, देन राइट एंड देन रूट. मींस सबसे पहले वो क्या प्रिंट करेगा, लेफ्ट पार्ट के सारे एलिमेंट्स को, फिर किसको प्रिंट करेगा, राइट पार्ट के सारे एलिमेंट्स को, और फिर किसको प्रिंट करेगा, वो रूट एलिमेंट को. तो नाउ चलिए इस प्रॉब्लम्स को वी हैव टू बी फाइंड आउट कि सपोज द गिवन ट्री इज दिस एंड वी हैव टू बी फाइंड आउट द इन प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल. तो इन दिस हियर कि फर्स्टली वी हैव टू बी फाइंड आउट द प्री ऑर्डर. ओके. तो इन द pre-order what does it say, firstly it will be print the root. So in the given tree what is the root, so it will be print the a. So my answer is that is a. Next one that is the left part. Next one is the left part means अब वो यहाँ पे इस नोड के पास गया जहां पे मेरे पास नोड्स कितने हैं, one is b and second one is d. अब मुझे यहाँ पे इसको प्रिंट करना है तो अगेन यहाँ पे क्या है, मेरे पास मोर देन 1 नोड्स है. तो ये सेम रूल्स फिर इसके ऊपर अप्लाई करेगा कि सबसे पहले क्या रूल अप्लाई करेगा इस पे. अगर मैं शॉर्ट में यहाँ पे इसको लिख दूं, दैट इज रूट, देन लेफ्ट और देन राइट. ठीक. तो व्हाट इज द रूट हियर, दैट इज बी. तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, बी. नेक्स्ट वो कहां गया, उसका लेफ्ट पार्ट. लेफ्ट पार्ट इज डी एंड राइट पार्ट, तो इसका बी का कोई भी राइट पार्ट नहीं है. तो यहां पे जब इसने लेफ्ट पार्ट को किया तो मेरे नोड्स कौन कौन से आ गया, दैट इज बी एंड डी. तो अभी हमने ट्रेवर्सिंग कौन सा किया, रूट को किया, और कौन सा किया, दैट इज द लेफ्ट पार्ट. अब कौन सा अप्लाई करना है हमको, राइट पार्ट. तो जब वो मेरे इस राइट पार्ट के पास गया तो सेम यही रूल अप्लाई इसके ऊपर करेगा कि वो सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, रूट, फिर किसको करेगा, लेफ्ट, फिर किसको करेगा, राइट. तो व्हाट इज द रूट हियर, दैट इज सी. तो वो किसको प्रिंट करेगा यहाँ पे, सी. नाउ कहां पे मूव किया उसने, लेफ्ट पार्ट. तो जब वो लेफ्ट पार्ट की तरफ गया अगेन उसको यहाँ पे मोर देन 1 एलिमेंट्स मिले. इसके अंदर यहाँ पे हम चेक करते हैं कि मोर देन 1 एलिमेंट्स मिले तो सबसे पहले फिर ये रूल अप्लाई करेगा, क्या प्रिंट करेगा, दैट इज रूट. रूट इज ई. देन उसका लेफ्ट पार्ट, तो उसका लेफ्ट पार्ट कोई भी नहीं है. देन वो किसको प्रिंट करेगा, दैट इज राइट पार्ट. और राइट पार्ट में मेरा क्या है वहां पे, दैट इज जी. तो अब हमने रूट को प्रिंट किया, उसके लेफ्ट पार्ट को किया. अब कहां मूव किया, उसके राइट पार्ट पे. तो सेम कंडीशंस वो यहां पे अप्लाई करेगा कि सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, रूट, एंड रूट इज
F, उसका लेफ्ट पार्ट इज H और उसका राइट पार्ट इज I। तो हम कह सकते हैं कि माई प्री ऑर्डर ट्रेवल्सिंग इज कि सारे नोड्स को जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया दैट इज A, B, D एंड C एंड सो ऑन। सेम वी हैव टू बी कैलकुलेट द इन ऑर्डर। ठीक है, फर्स्टली वी हैव टू बी राइट डाउन ओवर इन ऑर्डर में वो क्या कहता है, सबसे पहले दैट इज द प्रिंट लेफ्ट पार्ट, देन प्रिंट द रूट पार्ट, देन प्रिंट द राइट पार्ट। तो इन द गिवन ट्री सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, लेफ्ट पार्ट। तो ए का लेफ्ट क्या है, बी। अब ये यहाँ पे देखेगा क्या बी का भी कोई लेफ्ट है, हाँ दैट इज द लेफ्ट डी। तो फर्स्टली दैट इज प्रिंट द लेफ्ट पार्ट, विच वन इज डी। देन रूट, तो व्हाट इज द रूट ऑफ डी, दैट इज बी। तो ये क्या प्रिंट करेगा, बी। नाउ क्या करेगा, राइट पार्ट। तो डी का मेरा राइट पार्ट नहीं है। तो जैसे ही हमने इसको अब लेफ्ट पार्ट को प्रिंट किया, दिस इज द लेफ्ट पार्ट और इसका रूट कौन सा है, दैट इज ए। तो अब ये किसको प्रिंट करेगा, ए। अब मूव कहां पे करेगा, राइट पार्ट, दिस साइड। तो जैसे ही वो राइट पार्ट पे गया तो फिर यहां पे रूट अप्लाई क्या करेगा, सबसे पहले लेफ्ट, फिर रूट और फिर राइट। तो यहां पे लेफ्ट कौन सा है, सी। सी का लेफ्ट कौन सा है, ई। अब वो देखेगा क्या ई का लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट के बाद क्या आएगा, रूट। तो उसका रूट क्या आ गया, दैट इज ई। फिर उसका राइट क्या आ गया, ई का राइट क्या है, दैट इज जी। तो दिस वी हैव टू बी प्रिंट दिस। अब इस लेफ्ट का रूट कौन सा है, दैट इज सी। नाउ मूव टू द राइट पार्ट। तो जब वो राइट के अंदर गया तो व्हाट इज लेफ्ट, दैट इज एच, देन रूट दैट इज एफ एंड देन उसका राइट पार्ट। तो दिस इज द इन ऑर्डर ट्रेवल्सर। सेम इसी तरह वी हैव टू बी काउंटर फाइंड आउट द पोस्ट ऑर्डर traversing. In the post order traversing, what does he say? Firstly, that is print the left part. तो A का left B, B का left D. तो firstly that is print the D. Now root ना print करके अब वो किसको print कर रहा है, root को वो क्या कर रहा है, सबसे last कि that is the right part. D पे किया, अब इसका right इधर, B का right नहीं है, then root। तो वो यहाँ पे क्या print करेगा, that is B। क्लियर। तो अभी हमने लेफ्ट किया, अब वो क्या कह रहा है, लेफ्ट के बाद कौन सा आता है, दैट इज राइट। तो राइट इज दिस। तो नाउ वी हैव टू बी ट्रेवर्सिंग द दिस एलिमेंट, दिस पार्ट, राइट पार्ट। तो सेम हियर, रूट देन लेफ्ट, इसका लेफ्ट नथिंग, देन मूव कहां करेगा वो, राइट पे। तो व्हाट प्रिंट करेगा वो, दैट इज जी। देन क्या करेगा, लेफ्ट एंड राइट, इसका रूट दैट इज ई। लेफ्ट पार्ट मूव किया, कंप्लीट दिस वन। अब वो कहां जाएगा, उसके राइट पार्ट पे। तो राइट पे फिर गया तो क्या प्रिंट करेगा, दैट इज एच, इसका लेफ्ट पार्ट, इसका राइट पार्ट इज आई एंड देन रूट। क्लियर। लेफ्ट प्रिंट किया, राइट प्रिंट किया, नाउ दोनों का रूट क्या होगा, दैट इज सी। और लेफ्ट एंड राइट उन दोनों का रूट क्या होगा, ए। क्लियर। तो दिस इज द इन ऑर्डर, pre-order and the post-order traversal of the tree when a given problem that is a tree and we have to be find out the in-order, pre-order and the traversal. So we have to be apply these rule and we can be calculate the in-order, pre-order and the post-order traversal. Same another what is the problem कि अब मुझे वो एक given tree नहीं देगा, क्या चीजें देगा, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में से कोई भी दो चीजें मुझे वहां पे वो गिवन देगा और क्या बोल देगा कि सेम यू हैव टू बी ड्रॉ द ट्री। कि अभी हमने जो प्रॉब्लम किया व्हाट इज दिस, कि फ्रॉम ट्री वी हैव टू बी फाइंड आउट द इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड द पोस्ट ऑर्डर। नाउ व्हाट वी डू कि गिवन क्या होगा, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, कोई भी इनमें से दो चीजें गिवन होगी एंड वी हैव टू बी ड्रॉ द ट्री। क्लियर। नाउ दिस वन कि सपोज वी हैव ए प्रॉब्लम और व्हाट इज गिवन कि the pre-order of a tree is this and in order of the tree is this and you have to be draw the tree. Clear? So here what we do in the what is given, the pre-order and the in order. तो pre-order में वो क्या चीजें करता है कि when we have to be discuss the pre-order, तो firstly that is print the root, then print the left part, then print the right order, right part. तो here फर्स्टली वी हैव टू बी फाइंड आउट कि द फर्स्ट एलिमेंट इज नोन एज द रूट एलिमेंट। तो मैंने इसको यहाँ पे सिंपल क्या किया, सर्कल, कि ये मेरा क्या है, रूट एलिमेंट। बट यहाँ पे विच वन इज द लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट कौन सा है, ये चीजें मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं है कि विच नोड हैज इन द लेफ्ट पार्ट एंड विच नोड हैज इन द राइट पार्ट। तो फ्रॉम द सेकंड इन ऑर्डर व्हाट इज द रूट, ए। तो वी हैव टू बी सर्कल दिस। तो जो राइट साइड में मेरा यहाँ पे है दैट इज माई नोन एज द राइट पार्ट एंड दिस इज नोन एज माई लेफ्ट पार्ट। Clear? So we can say that in the step 1
ए इज द रूट एलिमेंट, इसके लेफ्ट पार्ट में मेरा क्या है, क्लियर। तो फ्रॉम हियर वी कैन बी सेम फाइंड आउट एच, दिस हेयर, के, दिस, डी, दिस, बी, दिस, आई, दिस, दिस, एल एंड ई। तो दिस इज माई लेफ्ट पार्ट एंड दिस इज माई राइट पार्ट। तो इन द फर्स्ट स्टेप ए इज द रूट, लेफ्ट में क्या है, बी, डी, एच, के, ई, आई एंड एल। तो ये मेरा क्या है लेफ्ट, और इसके राइट में मेरा क्या है, सी, एफ, जी, जे एंड एम। ये मेरा क्या है राइट पार्ट। अब मुझे क्या करना है, फर्स्टली वी हैव टू बी सॉल्व द लेफ्ट पार्ट, देन वी हैव टू बी सॉल्व द राइट पार्ट। तो इन द स्टेप 2 अब हम कंसीडर क्या करते हैं, सेम इसी प्रॉब्लम का इन ऑर्डर पीरियड ऑर्डर, जो भी चीज हमें यहाँ पे गिवन है क्या है, दैट इज, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं प्री, और दूसरा मेरा क्या गिवन है इन। तो मैं सिर्फ कंसीडर किसको करता हूं, इसके लेफ्ट पार्ट को, दैट इज बी, डी, एच, के, ई, आई एंड एल। सेम इन ऑर्डर का लेफ्ट पार्ट कौन सा है यहाँ पे, एच, के, डी, बी, आई, एल, कॉमा, ई। सेम हियर वी हैव टू बी फाइंड आउट द फर्स्ट नोड इज द रूट एलिमेंट। तो यहाँ पे मेरा क्या है रूट एलिमेंट, ये मेरा क्या होगा इसका लेफ्ट पार्ट, ये मेरा क्या होगा इसका राइट पार्ट। तो इसी ट्री को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं कि जो हमने अभी राइट पार्ट को हमने यहाँ पे अभी मूव नहीं किया, जी, जे एंड एम, अभी सोल्व किसको किया, लेफ्ट पार्ट को। तो जब लेफ्ट पार्ट को किया तो यहां से क्या निकला, ये मेरा रूट। सेम इसी तरह हमने किया कि एच के डी, एच के डी, ये मेरा क्या है, दिस इज द राइट पार्ट, सॉरी लेफ्ट पार्ट, और दिस इज द राइट पार्ट। तो यहां पे मेरा क्या निकला, बी, बी का मेरा लेफ्ट क्या हो गया, दैट इज डी, एच कोमा के, और इसका राइट पार्ट क्या है मेरा, ई कोमा आई कोमा एल। नाउ व्हाट वी डू, वी हैव टू बी सॉल्व इन द स्टेप 3 लेफ्ट पार्ट, किसका, पहले वाले इसका। तो अगेन हमने यहां पे क्या लिखा, उसका प्री ऑर्डर और उसका इन ऑर्डर। तो प्रीवियस में उसका प्री ऑर्डर क्या था लेफ्ट पार्ट का, दैट इज डी, एच एंड के, और इधर क्या है एच, के एंड डी। अब मैंने यहां पे फाइंड आउट किया कि मेरा रूट कौन सा है, डी। हियर इज द रूट, दिस इज द लेफ्ट पार्ट, और इसके पास कोई भी राइट पार्ट, राइट नोड्स नहीं है, एंड दिस इज द लेफ्ट पार्ट। तो जब इस टी को हम यहाँ पे अगेन ड्रॉ करेंगे, दैट इज ए का लेफ्ट क्या आ गया बी, इधर क्या था, अब यहाँ पे हमारा रूट क्या निकला, दैट इज डी, डी का राइट कुछ नहीं है, डी के लेफ्ट में कितना आ गया, एच एंड के। नाउ अगेन वी हैव टू बी सॉल्व फॉर व्हाट, एच एंड के। तो नेक्स्ट स्टेप में व्हाट वी डू, इन द फोर्थ again we have to be put pre-order and in order. What is the pre-order, h and k, here h and k. so this is my root, h left नहीं है, this is my right part, this is my right part. तो in the given tree, सॉरी ये चीजें रह गया, इसको हमने अभी as it is नहीं किया, जैसे हम लेफ्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे देन वी हैव टू बी सॉल्व द राइट पार्ट, क्लियर। तो नाउ व्हेन वी हैव टू बी सॉल्व दिस, कि दिस वन ए दैट इज बी, उसका इधर क्या आया था डी, अब रूट क्या निकला वहां पे, दैट इज एच, और एच का मेरा राइट पार्ट क्या निकला के। तो अब हमने क्या किया कि इसका जो भी कंप्लीट लेफ्ट पार्ट था, सॉरी दैट इज जे एंड एम, कि हमने इसके लेफ्ट पार्ट को सभी को पूरा कंप्लीट किया, ठीक। लेफ्ट पार्ट को कंप्लीट करने के बाद जो हमने फर्स्ट पार्ट में यहां पे छोड़ा था कि अब हम किसको सोल्व करेंगे, इसके राइट पार्ट को। तो नाउ वी हैव टू बी स्टार्ट द राइट पार्ट। नाउ आई एम इरेज हियर, क्लियर, ओके, ठीक। सेम नाउ व्हाट वी डू, जस्ट टेक अ पेन। नाउ इसका क्या कंसिडर करना है हमें, प्री ऑर्डर इन दोनों का, टेकिंग द राइट पार्ट, एंड राइट पार्ट इज सी, एफ, जी, जे एंड एम। सेम हियर एफ, सी, एम, जे एंड जी। अब हमने कौन सा लिया, सिर्फ इसका इस राइट पार्ट को लिया जिसको हमको यहाँ पे सोल्व करना है। तो नाउ हम फर्स्टली, दिस इज माई व्हाट इज द रूट, तो दिस इज द रूट एलिमेंट, दिस इज लेफ्ट पार्ट एंड दिस इज द राइट पार्ट। तो दिस इज द लेफ्ट एंड दिस इज द राइट। तो इन द गिवन ट्री जो हमारा है, तब हमको लेफ्ट पार्ट हमने अपना कंप्लीट कर चुके हैं,
इसको मुझे यहाँ पे चेंज नहीं करना है. फर्स्टली आई हैव टू बी ड्रॉ दिस H एंड K. अब यहाँ पे इसके राइट पार्ट में रूट कौन निकला, दैट इज द C. C का लेफ्ट क्या है, दैट इज F, और F मेरा क्या है यहाँ पे, इट हैज ओनली वन एलिमेंट, तो आई हैव टू बी प्रिंट हियर F. देन इसका राइट पार्ट में क्या है, G, J एंड M. Now again in the next step, that is 4, this is step number 5 and number is the step 6. तो फिर हमको क्या करना है, इस गिवन प्रॉब्लम जो ऊपर है अभी इन ऑर्डर, उसका क्या लिख देना है. अब हमको लेफ्ट कंप्लीट हो गया है, राइट पार्ट को सोल्व करना है, दैट इज M, J एंड G. अगेन वी हैव टू बी फाइंड आउट, दिस इज द रूट एलिमेंट, दिस इज द रूट, दिस इज द लेफ्ट पार्ट, दिस इज द लेफ्ट पार्ट. उसका राइट पार्ट हमारा यहाँ पे कोई भी नहीं है. तो अगर मैं इस वाले को इधर इरेज कर देता हूं, ठीक है. अब किसको सोल्व करना है कि यहाँ पे हमको इसका जैसे यहाँ पे किया तो मेरा ट्री क्या है, दैट इज A, B, लेफ्ट पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, D, दैट इज H, और इसका राइट क्या था हमारा K. इधर हमारा क्या निकला C, C का लेफ्ट क्या था F. अब जब इसको यहाँ पे ड्रॉ किया तो हमारा रूट कौन सा निकला यहाँ पे, G. G का लेफ्ट क्या है, J एंड M, और इसका राइट कोई भी चीजें नहीं है. तो अब हम किसको सॉल्व करना है, मुझे इस लेफ्ट पार्ट को करना है, किसका, स्टेप इसका 6 का. तो हमने स्टेप 7 में फिर अगेन दोबारा से पुट किया प्री ऑर्डर. प्री क्या है उसका, दैट इज J, M. अब इन ऑर्डर क्या है उसका, दैट इज M, J. तो फ्रॉम हेयर व्हाट वी डू, दिस इज द रूट एलिमेंट, दिस इज रूट, दिस इज माई लेफ्ट पार्ट, और उसका राइट कोई भी चीजें नहीं है. तो जब इस फाइनल ट्री को अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, दैट इज A, B, उसका लेफ्ट D, देन H, एंड इसका राइट क्या था हमारा K, और हेयर दिस इज C, हेयर दिस इज F, एंड हेयर दिस इज G. अब यहां से रूट क्या निकला हमारा, लेफ्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं तो यहां से रूट क्या निकला मेरा, दैट इज J, और J का मेरा रूट J निकला, ठीक है, और उसका लेफ्ट पार्ट मेरा कौन सा है, दैट इज M. क्लियर. तो दिस इज द फाइनल ट्री. कि अब प्रॉब्लम्स जो भी चीज आती है कि फ्रॉम ए गिवन ट्री, दिस इज द सॉल्यूशन. कि फ्रॉम, इफ वी हैव टू बी गिवन ए binary tree, then we have to be calculate the pre-order and the in-order and the post-order traversals. Similarly, if we have to be given the pre-order and the pre-order, in-order, post-order, उनमें से कोई भी दो चीजें अगर हमें given होगी तो हम क्या कर सकते हैं कि we have to be find out the number of the to calculate या to draw the tree. Clear? So these are the two problems. Again we have to be repeated. First, given tree, we have to be find out the इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड द पोस्ट ऑर्डर. दूसरा क्या होगा कि हमको क्या गिवन होगा, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में से कोई भी गिवन होगा, एंड वी हैव टू बी ड्रॉ द ट्री. क्लियर. तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ट्री ट्रेवर्सिंग, कि हाउ वी हैव टू बी ट्रेवर्स द नंबर ऑफ द नोड्स इन ए बाइनरी ट्री इफ ट्री इज गिवन, एंड सेकंड वन इज वी हैव टू बी गिवन द इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, एंड हाउ वी हैव टू बी ड्रॉ द ट्री. क्लियर. तो दीज आर द next one is the we have to be discuss what is a binary tree. So in a binary tree we have to be find out the maximum and minimum number of nodes in a binary tree. ठीक, कि suppose I draw a tree कि this is my tree, that is A, B, C, D, E and F. Clear. Now what we have to we find out first the maximum number of nodes. So in a binary tree what is it say कि every nodes have the maximum 2 children. Means कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि every nodes मेरा यहाँ पे क्या रखेगा, 2 children रखेगा. That is suppose this is 1, another, again it has 2, Z, Y, P, Q, R, X and M. ठीक. तो नाउ दिस इज ए, हाँ यस, दिस इज ए बाइनरी ट्री. तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं क्या इट इज ए बाइनरी ट्री, यस इट इज बाइनरी ट्री. इट इज बाइनरी ट्री, यस इट इज बाइनरी ट्री. कि एवरी नोड साइज कितना, 0, 1 एंड मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन रखेगा, 2. तो दिस इज ए ट्री विच हैज एवरी नोड्स हैज द मैक्सिमम 2
children. So that is known as a binary tree. So now we have to be calculate the total maximum number of nodes in a binary tree. So what is we say कि first node is stored at level 0, the next nodes is stored at level 1, next is the level 2, next is the level 3. So what we do, we have to be find out the total number of nodes at level 0, then we have to be find out the total number of nodes at level 1, then we have to be find out the total number of nodes at level 2, and similar we have to be find out the total number of nodes at level h, and then we have to be sum up. Clear? So how we can be find out in a binary tree the maximum number of node is the 2 की power I, is the 2 की power I, where I is the number of the level. So we have to be find out here कि at level 0, the total number of node is 2 की power I, means I is 0. So 2 की power 0, that is at level 1 a tree has 1 node. Clear? At similar we have to be find out at level 1. At level 1 the total number of node is 2 की power I, means 2 की power 1 equal to 2. So at level 1 it has 2 nodes, that is okay. Then we have to be calculate at level 2 the total number of node is 2 की power I, that is 2 की power 2 means 4. Clear? Similarly we have to be find out and so on from level 1 to and so on from level h, we have to be calculate. Clear? So similar if we have to be calculate the level is h, then total number of node is 2 की power I, means I equal to h. So total number of node is the 2 की power h. Now what we do, we have to be sum the number of nodes at level 0 plus number of nodes at level 1, number of nodes at level 2 plus number of nodes at level and so on h level tak we have to be sum up, and we have to be find out the maximum number of nodes. So what we do, we have to be there total number of node is represented by n, 2 की power 0, 2 की power 1, 2 की power 3 plus 2 की power h. Clear? Means this कि I am talking here 1 plus 2 plus 4 plus and so on plus up to 2 की power h. So I am not to be going to solve it. This is the GP series and the total number of nodes here is that is 2 की power h plus 1 minus 1. Clear? So here the total number of nodes in a maximum total number of node is the 2 की power h plus 1 minus 1. Similarly we have to be find out the minimum number of nodes. ठीक है ना? मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स मींस कि अगर यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया तो एक ट्री के अंदर क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, लेकिन बाइनरी ट्री मेरा क्या हो सकता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कितने हो सकते हैं 1, या वहां पे बोले उसके अंदर डिग्री कितनी हो सकती है 0, 1 एंड 2. तो वी हैव टू बी सिमिलरली फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स. तो अगेन वी हैव टू बी फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स. 1 मिनट. क्लियर? तो सिमिलर वी हैव टू बी फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल 0. तो एक लेवल 0 पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स हमें क्या है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं दिस इज अ नोड्स, मिनिमम नंबर्स एक नोड मुझे वहां पे चाहिए. ठीक, अब वो बात कर रहा है कि किस पे, एट हाइट 0 लेवल पे. 0 लेवल पे मेरा नोड्स कितना है 1. अगर हम बात करें 1 लेवल तो 1 लेवल पे मिनिमम, मुझे अब मैक्सिमम पे नहीं जाना, मैक्सिमम तो कितने हो सकते हैं 2, लेकिन मिनिमम मेरे कितने हो सकते हैं कि दिस इज द मिनिमम. या फिर मैं बात करूं कि इसके बाद ये भी हो सकता है कि मेरे मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं 2. कहां? एट लेवल 1. मींस अगर h इक्वल टू कितना था 0 तो मेरे नंबर ऑफ मिनिमम नोड्स कितना था 1. अगर h इक्वल टू कितना हुआ 1 तो मेरे नंबर ऑफ नोड्स कितना हो गया 2. सेम अगर मैं यहां पे बोलूं नंबर ऑफ लेवल कितना हो गया 2 लेवल पे, तो मेरे नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं मिनिमम दिस वन, या फिर मैं बात करूं दिस वन. तो दीज आर द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स. इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितना हो गया दैट इज 3. तो एंड सोन अगर हम यहाँ पे बात करें h लेवल तक मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स निकालने, तो हम कैसे निकालेंगे कि फर्स्ट पे क्या था 1, जब h इक्वल टू 0 था नोड्स कितना था 1, h इक्वल टू 1 हुआ तो नोड्स कितना हो गया 2, h इक्वल टू 2 हुआ तो मेरा नंबर ऑफ नोड्स कितना हो गया 3. तो मींस यहां पे अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मिनिमम नोड्स निकालूं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे, दैट इज n प्लस h प्लस 1. ठीक, तो दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ नोड. मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इज दिस एंड मिनिमम नंबर ऑफ नोड इज दिस. क्लियर?
नाउ वो बहुत बार यहां पे पूछता है कि प्रूव दैट इन ए बाइनरी ट्री द हाइट h इक्वल टू log बेस 2 n प्लस 1 माइनस 1। तो अभी हमने यहां पे क्या किया, एक फार्मूला निकाला कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स n इक्वल टू क्या है, दैट इज 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1। तो नाउ व्हाट वी डू, वी हैव टू बी कैलकुलेट h इक्वल टू, तो व्हाट वी डू कि वी हैव टू बी पुट 2 की पावर h प्लस 1 इक्वल टू दैट इज n प्लस 1। सेम तो हियर 2 की पावर, हियर विदाउट पावर, तो व्हाट वी डू टेकिंग log बोथ साइड। तो जैसे यहां पे log लिया तो ये क्या आ गया, दैट इज h प्लस 1 इक्वल टू log बेस 2 n प्लस 1। क्लियर? एंड h इक्वल टू व्हाट इज द log बेस 2 n प्लस 1 माइनस 1। तो दिस इज द हाइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स रखते हैं जब बाइनरी ट्री का, तो ये क्या हो गया, दैट इज ए प्रूफ। सिमिलरली वी हैव टू बी फाइंड आउट की मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड हेयर कि सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स, दैट इज कि n इक्वल टू कितना है हमारा, h प्लस 1। तो अगर मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स के अंदर वो मेरी हाइट पूछेगा तो मेरी हाइट कितना हो गया, दैट इज h इक्वल टू n माइनस 1। क्लियर? तो अगर हमारे पास बाइनरी ट्री वहां पे गिवन है तो हमें फर्स्टली व्हाट वी हैव टू बी डू, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, और फार्मूला फाइंड आउट किया हमने n इक्वल टू 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1। और फ्रॉम दिस फार्मूला वी हैव टू बी प्रूव कि दैट इज कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ ए बाइनरी ट्री is h equal to log base 2 n plus 1 minus 1. This is when we have taking the maximum number of nodes, or when we are taking the minimum number of nodes, our height is the n equal h equal to n plus 1. So we can be calculate the maximum and minimum number of nodes in a binary tree, and we have to be prove this formula कि the height of a binary tree is h equal to log base 2 n plus 1 minus 1. क्लियर? नाउ अभी हमने क्या निकाला था, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तीनों का क्या चीजें निकाला कि वी हैव टू बी गिवन ट्री एंड वी हैव टू बी फाइंड आउट द इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड द पोस्ट ऑर्डर। सिमिलरली कि अगर हमें पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर में से कोई भी दो चीजें गिवन है तो वी हैव टू बी ड्रॉ द ट्री। नाउ वी हैव टू बी कैलकुलेट द प्री ऑर्डर। आई थिंक ये थोड़ा सा कट हो गया कि दिस इज द प्री ऑर्डर फंक्शन। ठीक, व्हाट इज द प्री ऑर्डर फंक्शन कि वी हैव टू बी राइट डाउन द function, C function means we have to be calculate if our tree is empty, so we cannot be traverse the elements. So we have to be first write up here a condition ki if tree is not equal to null, then we have to be print the root, left and right part. So in the pre-order what is it say ki firstly print the root part, then print the left part, then print the right part. So here firstly root सिंगल वैल्यूज है तो हमने वहां पे क्या किया, दैट इज प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में क्या कर दिया, p का नम वैल्यूज को हमने वहां पे प्रिंट कर दिया। कि सपोज अगर एक ट्री मैं यहाँ पे लेके चलूं तो इस फर्स्ट नोड को मैंने यहाँ पे क्या किया, p वेरिएबल लिया, किस टाइप का है, पॉइंटर्स टाइप का, तो वो क्या कर देगा यहाँ पे p की वैल्यूज को मुझे यहाँ पे प्रिंट कर देगा। नाउ मुझे यहाँ पे क्या ट्रेवर्स करना है, इसका लेफ्ट पार्ट। अब हो सकता है लेफ्ट पार्ट के पास मेरा एक नोड्स नहीं है, मोर देन वन नोड्स है, मींस लेफ्ट पार्ट भी मेरा किस में डिवाइड है, दैट इज द रूट, लेफ्ट एंड द राइट। तो मुझे क्या करना है, p के लेफ्ट पार्ट पे अगेन वी हैव टू बी अप्लाई द प्री ऑर्डर, अगेन वी हैव टू बी अप्लाई द प्री ऑर्डर। सिमिलर क्या करना है कि अगर मेरा राइट पार्ट है, जो भी राइट पार्ट है, ठीक, अगेन यही चीज मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो वो फिर अप्लाई क्या करेगा, जब राइट पार्ट पे जाएगा फिर उसका रूट होगा, कोई ना कोई लेफ्ट होगा, कोई ना कोई उसका राइट होगा। तो इट इज अप्लाई द अगेन द प्री ऑर्डर फंक्शन अप्लाई करे, और किसके ऊपर अप्लाई कर दे, इन द राइट पार्ट। सिमिलरली वी हैव टू बी फाइंड आउट व्हाट इज द इन ऑर्डर। ठीक है, इन द इन ऑर्डर व्हाट इज से, फर्स्टली टेक द लेफ्ट पार्ट, देन टेक द रूट एलिमेंट एंड देन टेक द print the right part. ठीक, तो सेम कंडीशन इज हियर, वी आर टेकिंग ए फंक्शन इन ऑर्डर, टेकिंग ए पॉइंटर वेरिएबल p, वी हैव टू बी चेक द कंडीशन फर्स्टली इफ ट्री इज नॉट इक्वल टू नल। तो नाउ फर्स्टली क्या, लेफ्ट पार्ट मींस जब वो लेफ्ट के पास जाएगा अगेन इट हैज नंबर ऑफ नोड्स, रूट, लेफ्ट एंड राइट। तो वी हैव टू बी अप्लाई हियर द इन ऑर्डर विच p का लेफ्ट। नाउ देन द प्रिंट द रूट, तो वी हैव टू बी यूज प्रिंट एफ
परसेंटाइल डी इंटीजर टाइप जो भी होगा उसका डेटा करेक्टर या इंटीजर टाइप, और मैंने किसको प्रिंट कर दिया, वी हैव टू बी प्रिंट num values and now is the right part, तो that is the in order, और वो किसको ट्रेवर्सिंग करें यहाँ पे in order, that is my P का right part. Similar we have to be write down the post order, we have to be find out the post order. तो in the post order what is the, this is my function post order, that is a node, clear, that is the P. If tree is not equal to null, we have to be apply the conditions, tree is not equal to null, then we have to be calculate the post order. क्या चीज फाइंड आउट किया उसमें हमने, P का लेफ्ट, देन क्या किया पोस्ट ऑर्डर P का राइट, और किस वैल्यू को प्रिंट कर दिया उसका, P की नम वैल्यूज को. तो दिस इज द इन ए ट्री के अंदर, बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल के अंदर, कि इफ वी हैव टू बी गिवन द ट्री, तो हाउ वी कैन बी फाइंड आउट द इन ऑर्डर, पीरियड ऑर्डर एंड द फाइंड पोस्ट ऑर्डर, एंड व्हाट इज द सी फंक्शन ऑफ द period order, post order and the in order. Similarly, if in order period order is given, so how we can be draw a tree. Clear? So this is for today. Thank you.